You're welcome in Poonch Live. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رفیق حسین خان صاحب کی وفات ہوگی تو ہم وہاں آنا چاہتے تھے، تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کافی عرصہ ہو گیا ورکر سے ملے ہوئے، تو میں یہاں بھی آؤں اور آپ سب سے ملاقات کروں، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ سریندر چودھری نے بتایا، جب مفتی صاحب اس دنیا سے گئے تو پیچھے تو جب والد جاتے ہیں تو مکان، دکان، زمین، جائیداد، میری ساری جائیداد، دکان شکان آپ ہیں۔ میرا جو بھی اثاثہ ہے والد کا وہ آپ ہیں، تو میں نے کہا میں آپ سے ملوں، بات کروں اور بتاؤں، اپنا دل کھول کے بتاؤں کہ حالات بہت خراب ہیں، بڑی مشکل میں ہیں ہم۔ پہلے بھی ایک بار بہت مشکل میں آئے تھے، تب شکر تھا کہ میرے ساتھ میرے والد تھے، مفتی صاحب تھے، تو ہم نے اس وقت ہمت کی، ایک بہت بڑی جماعت میں تھے، ہم کانگریس میں تھے، تو لگا ہمیں کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا جس سے ہم جموں کشمیر کو اس مصیبت سے نکالیں، کیونکہ کئی بندوقیں تھی، خاص کر یہ جو دور دراز علاقے ہیں، پونچھ جیسے یہاں کے گاؤں دیہات، رات کو ایک دستک دیتا تھا تو وہ کھانا مانگتا تھا، اس کے بعد دوسرے دستک دینے والے آتے تھے، تو لوگوں کی حالات بہت خراب تھی۔ اسی کمرے میں کھانا پینا، اسی کمرے میں باقی کام بھی ہونا کرتا تھا، کہ باہر جانے کا ڈر لگتا تھا۔ تو اس وقت مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ میں تو اس ملک کا ہوم منسٹر بھی بنا ہوں، اب اس سے زیادہ مجھے کچھ بننا نہیں ہے، مگر اگر میں اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے نکال سکوں، اس خون خرابے سے نکال سکوں، یہ جو ہمارے بارڈرز پہ رہتے لوگ، نہ تو ان کی شادی وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں، نہ ان کی میت جو ہے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، ان کو اسکول بچے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ دن بھر گولہ باری چلتی رہتی تھی۔ تو فیصلہ ہوا کہ ہم ایک بہت بڑے گھر میں رہتے تھے، کانگریس میں رہتے تھے، کہ ہم اس کو چھوڑ کے کچھ چھوٹا موٹا اپنا ایسا بنائیں گے جس میں ہم یہاں کے لوگوں کو سایہ دے سکیں، یہاں کے لوگوں کو ایک حفاظت کر سکیں، ان کے جان و مال اور ان کی عزت کی۔ کیونکہ کانگریس میں بات کرتے تھے ہم تو شکایت دلی پہنچ جاتی تھی کہ آج محبوبہ مفتی نے یہ کہا، آج وہ کہا۔ کانگریس ایک بہت بڑی جماعت ہے، ان کو پورے ملک کا سوچنا پڑتا ہے، تو مگر یہاں لوگوں کا دم گھٹتا تھا، جیسے آج دم گھٹ رہا ہے لوگوں کا، بات نہیں کرتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ ابھی سریندر چودھری جی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں نکلے؟ سریندر جی، آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک ایک دروازے کے باہر ایک ایک آدمی والا تھا، 10 لاکھ فوجیں، سری نگر ہو، جموں ہو، پونچھ ہو، راجوری ہو، ہر جگہ تارے، کنڈے دار تار، اور باہر کھڑے لوگوں کو ایک ایک آدمی گھر کے باہر کھڑا تھا، اور جان عزیز ہوتی ہے۔ اور جب ان کو معلوم تھا کہ دلی میں بی جے پی کی سرکار ہے، جو کچھ بھی نہیں کریں گے، گریز سرے وہ کر لیں گے۔ تو اس لیے جب ہم نے جماعت بنائی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، مفتی صاحب کو موقع تو نہیں دیا لوگوں نے، کچھ سیٹیں ملی، پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، انہوں نے سرکار بنائی۔ پر سرکار کا مقصد ہی ان کا یہ تھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو کرسی کی کوئی لالچ نہیں تھی، کیونکہ جب ہوم منسٹر بنتے ہیں تو سارے چیف منسٹر آپ کے ماتحت ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ میں کس طرح سے اس جموں کشمیر کے انسان کو، چاہے وہ بارڈر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ گاؤں میں رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، اس کو ان گولیوں سے باہر کیسے نکالوں میں، کس طرح میں ملیٹنٹ کی گولی کو بند کروں، کس طرح میں سیکورٹی فورسز کو کنٹرول کر سکوں، کس طرح میں پولیس، جس کو ٹاسک فورس بولتے تھے، اس کو کیسے کنٹرول کر سکوں۔ اور جب ان کے ہاتھ میں طاقت آئی تو کانگریس کی کچھ سیٹیں، کچھ ہماری، تو اس وقت بھی ہم نے ایک ایجنڈا آف الائنس بنایا، ہم نے آنکھ بند کر کے کانگریس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، ہم نے ان کو بولا کہ ہم نے یہ سرکار کچھ چیزوں کے لیے بنانی ہے، کچھ مدعوں کے لیے بنانی ہے، ہم نے کوٹا ختم کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب فاروق صاحب کی سرکار تھی، نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی، ابھی دلی میں پوٹا بنا بھی نہیں تھا تو یہاں لاگو کیا گیا، یعنی کہ جس گھر میں ملیٹنٹ ملے گا اس گھر کے گھر کو اڑا دو۔
जो भी मिलेगा। हमारे कश्मीर में तो ऐसा हुआ कि सबसे पहले कुछ बच्चियों को अरेस्ट किया गया कोटा के तहत, किसी घर में ताला लगाया गया कोटा के तहत। तो हमने ये शर्त रखी कांग्रेस के साथ कि जब हम आपके साथ सरकार बनाएंगे तो हमने पहले कोटा खत्म करना है, हमने टास्क फोर्स को खत्म करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में टास्क फोर्स ने बड़ा उद्यम मचाया था। इंसान को गायब होते करते थे और उसके बाद अगर वो खुशकिस्मत होता था तो 50, 60, 70 हजार में मिल जाता था वापस। अगर कोई गरीब बेचारा बदकिस्मत होता था तो वापस नहीं मिलता था। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई मैंने सरकार बनानी है आपके साथ, मगर मेरी ये शर्त है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में जो अलहदगी पसंद है उनके साथ भी बात होनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ भी बात होनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर जो झगड़े का बायस बना हुआ है, जो झगड़े का अखाड़ा बना हुआ है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक अमन का पुल बनना चाहिए, जिसकी मिसाल रावलाकोट रोड थी, जिसकी मिसाल मुजफ्फराबाद रोड थी। यानी पहले वहां से अगर बंदूकें आते थे तो जब हमने रास्ते खोलने की बात की तो लोगों का आना जाना हुआ, रिश्तेदारों का मिलना मिलाना हुआ। हमारे कश्मीर के सेब जाते थे और वहां से पैसा आता था, या कोई और चीज, पैसा तो नहीं आता था, कोई दूसरी चीज आती। तो ये मुफ्ती साहब का नक्शा था जहन में, जो उन्होंने कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट किया कि ये काम मैंने करने हैं, तब हमारी सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद हमने कोशिश की कि जो बॉर्डर पे हमारे लोग रहते हैं उनको भी अमन मिले। वाजपेयी जी कश्मीर आए और उन्होंने वहां से ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती के लिए तैयार हूँ। हमारी फौजें थी, आपको याद होगा, हमारी फौजें थी बॉर्डर्स पे, उनको वापस बुलाया गया। मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा कि जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने तो वाजपेयी जी से मिलने गए और वाजपेयी जी को बताया, वाजपेयी जी आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हैं? तो वाजपेयी जी ने अपने अंदाज में कहा, मुफ्ती जी क्या बात करूं, वो कश्मीर मांगते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा, कश्मीर तो आप हम सब समझते हैं, कोई भी इस मुल्क का वजीर आजम हो कश्मीर नहीं दे सकता है, मगर हम एक काम तो कर सकते हैं, इस जम्मू कश्मीर और उस कश्मीर के बीच में जो दीवारें हैं उनको तोड़ सकते हैं, जो रास्ते हैं उनको खोल सकते हैं, ताकि भाई भाई से मिल सके, भाई बहन मिल सके, बाप बेटे से मिल सके। इतना तो कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि वाजपेयी जी ने मुफ्ती साहब की इस बात के साथ इत्तेफाक किया और मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बात चली और रास्ते खुले भी, कारोबार भी हुआ, यहाँ भी खुला, टास्क फोर्स भी खत्म हुआ, कोटा भी खत्म हुआ। और तरक्की के लिहाज से मुफ्ती साहब ने जगह जगह कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ा ये जो हमें ये मुगल रोड जिसपे वो टनल बनाने का उनका ख्वाब था, मैंने बड़ी कोशिश की। जब मैं वजीर आला थी तो मैं गडकरी साहब से मिली 2-3 बार। मैंने उनको बोला कि हमारा जो ये वाला रास्ता है नेशनल हाईवे, वो सर्दियों में बिल्कुल बंद हो जाता है, इस पे एक टनल बनना चाहिए ताकि ये रास्ता हमारा चलता रहे। यानी मुफ्ती साहब से जो बन पड़ा उस वक्त उन्होंने किया। मगर आज फिर से आजमाइश का वक्त है और आज मैं आप लोगों के पास कुछ देने को नहीं आई हूँ, आपसे आपकी दुआएं और आपकी मदद लेने आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल रास्ते पे चल पड़ी हूँ। मेरे वालिद का ख्वाब था, जब 28 जुलाई 2014 को उन्होंने मीटिंग की, हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे था, तो मुफ्ती साहब ने कहा वहाँ हमारे वर्कर थे, कहा मुझे वजीर आला बनने का शौक नहीं है, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहता हूँ मुझे 40 सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो। मैं चाहता हूँ किसी बाप को अपने बेटे का जनाजा अपने कांधों पे ना उठाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जवान बंदूक ना उठाए। मैं चाहता हूँ कोई भी जवान हमारे बॉर्डर्स पे शहीद ना हो। मैं जम्मू कश्मीर में अमन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर को पुल बनाऊं। तो क्या हुआ, इलेक्शन में कितनी सीटें हमें मिली वो आप सबको मालूम है, कोई ज्यादा नहीं मिला। जम्मू में बीजेपी को मिली तो बड़ा सवाल पैदा हुआ कि अब क्या करें। मुफ्ती साहब ने कहा मुझे वजीर आला बनने का शौक नहीं है, वजीर आला तो मैं कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकता हूँ, मैं नहीं बनूंगा तो कोई दूसरा बनेगा। मगर उन्होंने कहा ये जो मैंडेट आया है, इस मैंडेट को मैं किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जम्मू के लोगों को ये नहीं बताना चाहता हूँ
کہ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا اس لیے مفتی آپ کے ساتھ سرکار نہیں بنے گا؟ اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دوسرا مفتی صاحب نے سوچا کہ ایک تو کشمیر اور جموں کے بیچ میں پل بننا چاہتا ہوں, دوسرا جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں پل بننا چاہتا ہوں. اور ان کو یہ خیال تھا کہ جو بات چیت واجپئی جی کے وقت میں ادھوری رہ گئی, جو راستے ادھورے رہ گئے, جو نوشہرہ جنگل کا راستہ مفتی صاحب کا خواب تھا, جموں سیالکوٹ تھا, کرگل اسکردو, بانڈی پور استور, اس لیے ان کے ذہن میں جموں کشمیر کا حل یہی تھا کہ راستے کھودو, جموں کشمیر کاروبار کا ایک مرکز بن جائے جیسے سرکاری سے پہلے تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملائیں, کیونکہ بی جے پی کے ایجنڈے میں تھا 370 ختم کرنا, تو مفتی صاحب نے سوچا کہ یہاں سے جب کوئی خدا نہ خاصہ کوئی بہت بڑی بلا آتی ہے, کیا کرو گے آپ؟ اس کو آ کے وہ کھا جائے گی, دائیں بائیں کھا جائے گی, مگر اگر آپ اس بلا کے سامنے کچھ سامنے کھانا شانا ڈال دو گے, وہ کھانا کھائے گی, دوسرے خیرات کرو گے, دوسرے بچ جاتے ہیں. تو مفتی صاحب نے سوچا کہ اگر میں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملاؤں, یہ شرط رکھوں کہ 370 کو آپ نہیں چھیڑیں گے تو میں 370 کو بچا سکتا ہوں. کہ بار بار مفتی صاحب کہتے تھے کہ جموں کشمیر پہ مجھے فخر ہے, ہمارے اپنا جھنڈا ہے, ہمارا اپنا آئین ہے, ہماری اسمبلی کی اتنی طاقت ہے کہ آج کسانوں کا قانون پاس ہوا. اگر 370 ہمارے پاس ہوتا تو یہ قانون ہمارے یہاں لاگو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں وہی قانون لاگو ہو سکتا تھا جو ہم چاہتے, جو دلی چاہتی وہ نہیں جو ہم چاہتے. تو مفتی صاحب کو بڑا فخر تھا جب انہوں نے دیکھا کہ بی جے پی کی طاقت اور مودی بہت بڑی طاقت لے کے ہندوستان میں سرکار بنائی ہے, تو انہوں نے سوچا کہ جو ہمارے پاس ہے اس کو کیسے بچاؤں میں. انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگایا. مفتی صاحب جس کو بہت بڑا سیکولرزم کا بڑا مانا جاتا ہے, تو اس نے بی جے پی کے ساتھ مودی کے ساتھ ہاتھ ملایا. یہ آسان کام تھا کیا ان کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے نہیں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا, اپنی کریڈیبلٹی, اپنی عزت, اپنی پارٹی سب داؤ پہ لگایا. کیوں لگایا؟ جموں کشمیر کے تشخص کو بچانے کے لیے, جموں کشمیر کی عزت کو بچانے کے لیے, جموں کشمیر میں 370 کو بچانے کے لیے. اور مودی جی اس کو مجبور ہو گئے, انہوں نے لکھ کے دیا ہمیں کہ ہم 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. یہ پہلی شرط تھی ہماری. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک مفتی صاحب 10 مہینے رہے, میں 2 سال سرکار میں رہی, تو ہم نے 370 کو ہاتھ لگانے نہیں دیا. میں نے ان کا ایجنڈا نہیں مانا بلکہ میرا ایجنڈا چلا. ہم نے پورے ملک سے آل پارٹی ڈیلیگیشن لایا 2016 میں, اور وہ حریت کے دروازوں پہ گئے اور ان کو بولا کہ آپ بتاؤ کیا بات ہے. اب حریت والوں نے دروازہ نہیں کھولا تو اس میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے؟ دروازہ کھول دیتے, بات نہیں کرتے تو کم سے کم ایک کپ قہوہ پلاتے, کیونکہ ملک کے لوگ دیکھ رہے تھے اس وقت. جب ملک کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں سے بڑے بڑے عزت دار لوگ چلے گئے, ان کا دروازہ بند ہو گیا, تو ملک کے لوگوں کو بھی ایک جھٹکا سا لگا. میں نے سیز فائر کروا دیا 1 مہینے کے لیے, جو آج تک کسی سرکار نے نہیں کیا, اور وہ بھی مودی جی سے سیز فائر کروایا جموں کشمیر میں. میں نے 12,000 نوجوانوں کے ایف آئی آر واپس لیے. میں نے رسانہ کیس میں سٹینڈ لیا, میں نے کہا وہ میری بچی ہے, میں نے کہا کہ میری بچی ہے, اس کا نام نہیں لینا چاہیے بچی کا. میں نے کہا کہ جب تک مجرموں کو سزا نہیں ملے گی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی, اور اگر اس کے لیے میری کرسی جاتی ہے تو بنا سے چلی جائے, کیونکہ وہ بچی, وہ ایک معصوم بچی تھی جس کے ساتھ اتنا بڑا غدر ہو گیا. میں نے 2 منسٹر ڈراپ کروا دیے بی جے پی کے. تو 2 سال میں سرکار میں رہی, کوئی آپ کسی دشمن کو بھی یہ نہ دعا دیں کہ ویسی سرکار ملے اس کو جو میں نے دیکھا. 2 سال جو حالات ہوئے جموں کشمیر کے, وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں کس کانٹے کے تاج کو سر پہ لے کے, سر پہ ہی نہیں تھا, پورے میرے جسم پہ کانٹے تھے, بہت مشکل حالات میں. مگر اس کے بعد بی جے پی چاہتی تھی کہ کشمیر میں کنٹرول کیا جائے سچویشن کو, ایسے ہی جیسے وہ آج کر رہے ہیں. ابھی کوئی منہ نہیں کھولتا ہے تو اس کو این آئی اے پکڑ کے لے جاتی ہے اور اس کے خلاف یو ایف پی اے لگا دیتی ہے, جس کی ضمانت ہی نہیں ہوتی ہے. ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان ملک کے الگ الگ جیلوں میں ہیں, ان کے ماں باپ غریب, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کیسے جائے ان سے ملنے کے لیے, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
कोई बात करने वाला नहीं। वो कहां से वकील का पैसा लाएंगे? वो चाहते थे बीजेपी उस वक्त मैं सख्ती करूं, रसाना केस में मैं कॉम्प्रोमाइज करूं। वो चाहते थे कि जो मिलिटेंट जब मारे जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी वापस ना दूं, जैसे आज करते हैं, आज डेड बॉडी वापस नहीं मिलती है। वो चाहते हैं मैं जमात इस्लामी पे क्रैक डाउन करूं। वो चाहते थे मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करूं। वो चाहते थे मैं पाकिस्तान से बात करने की बात ना करूं। वो चाहते थे मैं जम्मू कश्मीर में डायलॉग की बात ना करूं। मगर ये तो हमारा एजेंडा है, इसको मैं कैसे छोड़ सकती थी? ये तो मुफ्ती साहब का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर को एक अमन का पुल बनाना है, तो उसमें तो पाकिस्तान का रोल बनता है, उसके बगैर तो बात नहीं बनेगी। जब तक आपका पाकिस्तान आमादा नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर में अमन कैसे होगा? ये तो बीजेपी वाले कहते हैं जी पाकिस्तान वाले बंदूक बेचते हैं, मगर वाजपेयी जी ने मुशर्रफ से बात करके बंदूकें भिजवाना बंद किया था। ये तो इतनी बड़ी, उस वक्त तो वाजपेयी जी के पास इतनी सीटें नहीं थी, इनके पास तो इतनी ताकत है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जंग करो, वो भी पता नहीं कौन सी जंग करते हैं, मुझे नहीं पता। अभी चीन ने हमारे 20-22 जवानों को शहीद कर दिया। अब चीन को तो आंख नहीं दिखा पाते हैं और चुप करके दुम दबा के वहां बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल है। हमारा जो तशख्खुस है 370 कोई मुसलमानों की कोई वो उनका ताज नहीं था। 370 हम सब के लिए एक बचाव था। क्या बचाव था? कि हमारी जमीन, अभी मैंने सुना कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट एक्ट के तहत हमारे लोगों को खदेड़ा जाता है। मैंने पुरुष में भी, मुझे मेघन में भी लोग मिले, जंगल के नाम पे ही जमीन खाली करो। मगर इसी जंगल की 24,000 कनाल या एकड़ जमीन कहा इंडस्ट्री के नाम रखो। वो कौन सी इंडस्ट्री? बड़े बड़े सरमायादार, उनको जमीन मिलेगी, वो कौन सी इंडस्ट्री डालते हैं यहाँ पर? बाहर से वो लोगों को लेके आते हैं मजदूरी करने के लिए और कारोबार करने के लिए। यानी यहाँ के इंसान के लिए यहाँ की जमीन नहीं है। यहाँ का जो जंगल का हकदार है उसको कहते हैं जमीन खाली करो, मगर बाहर के जो बड़े सरमायादार हैं उनके लिए जंगल की जमीन वक्फ की गई। एक 370 का जाने का ये बड़ा नुकसान है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारी नौकरियां, जैसे हमारे नौजवान पहले ही बेरोजगार थे, पहले हमारे पास कम नौकरियां थी, अब पूरे मुल्क के साथ आपको ये नौकरियां बांटनी है। यानी पूरे मुल्क से, जो जैसे यहाँ कई बुजुर्गों ने बताया कि हम कंपटीशन नहीं कर सकते बाहर के लोगों के साथ। हमारा गरीब का बच्चा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो वो क्या कम्पीट करेगा? वो तो पहले गाँव का शहर के साथ कम्पीट नहीं कर पाता है, तो अब बाहर के मुल्कों के साथ, बाहर की रियासतों के साथ क्या कम्पीट करेगा? यानी नौकरियों में भी हमारी हिस्सेदारी अब बाहर के लोग करेंगे और हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? तो इसी तरह से मामूली सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। रेत और बाजरी वो भी बाहर से आके लोग निकालते हैं। अगर पहले 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में या 10,000 रुपए में कोई ट्रक मिलता था या बाजरी मिलती थी, अब वो 20-20, 25-25 हजार रुपए का ट्रक। इंसान को ये भी हक नहीं है कि मैं अपनी रेत निकालूं। हमारे कश्मीर में भी ऐसा होता था, जो नाले हैं, नाले से जो गरीब आदमी वो निकालता था, हाथ से रेत निकालता था, उसके बाद उसको बेचता था, सस्ते दाम बेचता था। आज ऐसा नहीं, आज बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और वहां पर कश्मीरी को जाने नहीं देते हैं, बाहर से ही आए गए हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डोमिसाइल यानी जो चाहे जमीन खरीद सकता है, और जब भी इनके इलेक्शन होते हैं तो वहां लोग बोलते हैं हमें रोटी दे दो, हमें पानी दे दो, हमें बिजली दे दो। चाहे यूपी हो, बिहार हो, ये रोटी, बिजली, पानी, रोजगार तो दे नहीं पाते। कहते हैं कश्मीर में जमीन खरीदो। अरे भाई, पहले इनको अपने घर में तो घर दे दो, जहां ये रहते हैं वहां तो छत दे दो। हर बात में कहते हैं कश्मीर में हम आपको जमीन दे देंगे। ऐसे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जमीन इतनी सस्ती नहीं है कि आप जिन लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पाते हो, पहनने को कपड़ा नहीं दे पाते हो, सर पे छत नहीं दे पाते हो, तो वो आके कश्मीर में जमीन, जम्मू में जमीन, पुंछ में जमीन खरीदेंगे। तो इसलिए ये सारे जो है हमारे नुकसानात हैं जो 370 हमारा गया। और सबसे बड़ा हमारी पहचान ये जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ऐसी रियासत दुनिया में कहीं नहीं है। जितने मजहब के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है,
उसके बाद हमारे में पहाड़ी, गुज्जर हमारा भाई, राजपूत, तरह तरह के रंग बिरंगे, हमारे मौसम अलग हैं। जम्मू में एक मौसम है, कश्मीर में एक मौसम है, लद्दाख में अलग मौसम है। ऐसी रियासत कहीं नहीं है, पूरे दुनिया में नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर भी नहीं है। एक छोटा सा मुल्क, उस मुल्क के छोटा सा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा सा हिंदुस्तान, जिसका अपना एक झंडा, जिसका अपना एक आईन, जिस आईन की कसम मैंने खाई थी जब मैं पहली बार एमएलए बनी, और मैंने कहा मैं तब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक मेरा वो झंडा, मेरा वो आईन वापस नहीं आता है। मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, मगर आपको ये ध्यान रखना है, जिस मुफ्ती साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी आप लोगों के लिए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू का हिंदू और मुसलमान का भाईचारा बना रहे। कहीं ये ना कहे कि ये मुसलमानों की जमात थी, इन्होंने जम्मू के हिंदुओं को धोखा दिया, उनको सरकार में आने नहीं दिया। मुसलमान और हिंदू का भाईचारा न टूट जाए इस बात पे। और मोदी जी से हाथ मिलाए कि मसले कश्मीर हल हो, जहाँ पर वाजपेयी ने छोड़ दिया, ये उस बात को आगे चलाए। अगर वाजपेयी ने हुर्रियत से बात की, ये भी बात करे, और हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा था कि आप हुर्रियत से बात करेंगे, वो भी मान गए। हमने कहा पाकिस्तान से बात करोगे, वो भी मान गए। हमने कहा करगिल अस्कंदू खोलोगे, जम्मू सियालकोट खोलोगे, नौशहर ने, ये सब बातें मान गए, हमारी सारी शर्तें मान गए, और उस पर अमल करना की जब बात आई, हालात इतने खराब हो गए, ये लोग भाग गए सरकार से। तो अब ये आपके मुफ्ती साहब की जमात है, और मैं किसी जमात की मुखालफत नहीं करना चाहती। अगर जम्मू कश्मीर में कोई जमात इस मुसीबत से, जैसे पहले भी इसी जमात में निकाला था, और आज की मुसीबत का, चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है, तो आपकी जमात पीडीपी और कुछ नहीं है, और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मेरी हिम्मत कहां से आएगी? देखिए 15 महीने तो मुझे पहले बंद रखा, अब भी पता नहीं कब क्या हो सकता है मेरे साथ, मगर मेरी ताकत, मेरा जो जुर्रत है वो आप लोग हैं। मेरे ये जो यहाँ जो हमारे लोग हैं, यहाँ पुंछ में है, इधर मेडर में है, सुरनकोट में है, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए मैं पहले, मेरे साथ मेरे वालिद थे तो मुझे अपना आप बहुत मजबूत लगता था। अब उनकी गैर मौजूदगी में मुझे आप लोगों की ज्यादा जरूरत है, मुझे आपके साथ की जरूरत है। मुझे कोई वजीर आला बनने का शौक नहीं है। वजीर आला में बन गई तब भी मैं शायद नहीं बनती अगर मुफ्ती साहब का उनका कोई कमिटमेंट नहीं होती, उन्होंने किसी को जबान नहीं दी होती, तो शायद मैं नहीं करती जो मैंने किया। मगर मैंने कहा कि मेरे वालिद ने एक जबान दी है, तो इसलिए मुझे उस पर चलना पड़ेगा। उसमें भी 2-3 महीने लगे, मगर कुछ हालात ऐसे बने। तो मुझे मैं आपसे अब वजीर आला बनने के लिए, इस वक्त वजीर आला हमारी जमात में बहुत सारे लोग हैं जो बन सकते हैं, एक से एक बढ़िया हैं, बड़े बड़े अच्छे लीडर हैं जिन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, जो मेरे साथ टिके रहे। मगर इस जमात को जिंदा रखना है। हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे पास कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं है। वेलकम हिंदुस्तान के अंदर फार्मर्स एजिटेशन है, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार दोबारा चुन के आई है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब भी आप पार्लियामेंट में कोई कानून बनाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के लिए वो कानून बनता है पहले उनकी रजामंदी ली जाती है। जब फार्मर्स का कानून बना तो उसके लिए उनसे पूछा नहीं गया, और आज फार्मर्स पिछले 2 महीने से सड़कों पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस जो बिल लाया गया है ये हमारे हक में नहीं है, हमारे फ़ायदे में नहीं, हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो। मगर बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की सरकार अड़ी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि 26 जनवरी को जो एक ड्रामा रचाया गया, जिस तरह से कुछ गिने चुने जो गुंडा एलिमेंट है उनको लाल किले तक रसाई दी गई, उनको वहाँ पहुँचाया गया, उसके बाद उन्होंने झंडा वहाँ लहराया। तो इस तरह जो फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये अब पहली बार नहीं हुआ। जब सीए में हुआ था, सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको भी पाकिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की गई, इनको खालिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझती हूँ हमारी मुल्क के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो बीजेपी कर रही है। ये मुल्क को तितर बितर करना चाहती है,
ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है, ये हिंदू और सिख के बीच में फसाद डालना चाहती है। मैडम, इस वक्त चाइना और इंडिया के और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो हर आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसको आप बतौर जम्मू कश्मीर का हेड होने के नाते से क्या कैसे देख रहे हो? और इसके सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल बॉर्डर के लोग सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हम समझते हैं इस बात को, खजल हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, रोज़ गोली चलती है, कोई ना कोई मारा जाता है। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो इस वक्त जो हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं उनके पास विजन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। चाइना भी, पाकिस्तान और चाइना की बात क्यों करते हैं आप देखिए नेपाल के साथ देखिए, बांग्लादेश के साथ देखिए, श्रीलंका के साथ देखिए, किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो बॉर्डर पे हमारे लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। चाइना के साथ रिश्ते ख़राब हो गए तो हमारे 20-22 नौजवान शहीद किए गए। तो मैं समझती हूँ इस सरकार को ये एक इलेक्शन जीतने की मशीन बना हुआ है। इनके पास इलेक्शन जीतने के बगैर जो पूरे मुल्क के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। इनका काम सिर्फ ये है कि हम किस तरह इलेक्शन जीते, और उसके लिए इन्होंने फार्मूला एक बनाया हुआ है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ। अब 370 का एक मैनिफेस्टो जो था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 370 जो है वो उसको तोड़ा जाएगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। और स्टेट के अंदर इस वक्त एक अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो सियासी पार्टियां हैं चाहे स्टेट के अंदर है। तो आप इसको कैसे? बहुत बर्बादी की इन्होंने। एक जो स्टेट बनाई थी, डोगरा महाराजा ने बनाई थी एक स्टेट, जिसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर और अलग अलग मज़हब के लोग थे। बहुत खूबसूरत स्टेट बनाई थी। इन्होंने उस स्टेट को तितर बितर कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ऐसे डोमिसाइल ला लाए, ऐसे कानून लाए जिससे हमारी ज़मीन और हमारी नौकरियों को सेल पे लगा दिया। हमारा नौजवान, उसको नौकरी नहीं मिलती है, मगर जो बाहर के लोग हैं उनको उसमें हिस्सा मिलता है। हमारे यहाँ लोगों को जंगलात की ज़मीनों से खदेड़ा जा रहा है, जबकि जंगलात की कोई हज़ारों कनाल ज़मीन ये बड़े बड़े सरमायाकारों को इंडस्ट्री के नाम पे दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि 370 कोई कश्मीरियों या मुसलमानों के लिए बचाव की बात नहीं थी, ये पूरे जम्मू कश्मीर को बचा रहा था। और इसको वापस करना, इसको लाना, उसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। गुर्राज में जो करप्शन है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे?